Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SSC teacher. We have started chapter 10 in history, and also we discussed about some of the important topics related to this chapter. Some important topics are arguments for reform of caste. In this there are some important points. First point we have already discussed, cause of hostility and jealousy. Second point, a check on personal advancement. Third topic, main cause of untouchability. And fourth, that is a check on religious advancement. And today we are going to start our next point of the same topic, that is anti-democratic, and after this responsible for narrow outlook and against the feeling of world brotherhood. These are the topics which we are going to start today. Okay, so let's open your book, page number 84. Okay, first, anti-democratic. In a democratic country, all the people enjoy equal rights and anybody can choose the profession of his own choice. We are living in the democratic country and all the people have the right to choose their rights to choose their own profession according to their own choice. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि सब लोगों को उनका अधिकार है कि वे अपने हिसाब से अपने पसंद की कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं. ठीक, इन सच अ कंट्री नोबडी इज डिनाइड द पॉलिटिकल राइट्स. इस तरह के कंट्री में किसी को भी हम पॉलिटिकल राइट से हम मना नहीं कर सकते. बट ऑल दिस इज नॉट पॉसिबल इन अ कास्ट रिडन सोसाइटी. लेकिन यह कास्ट रिडन सोसाइटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है. And hence the caste system is highly undemocratic. In this way we can see that caste system is highly undemocratic. Second point, responsible for narrow outlook. The caste system has been to a long extent responsible for the development of narrow outlook among the Indians. एंड द कास्ट सिस्टम की वजह से क्या होने लगा है, लार्ज एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, बहुत हद तक जो कि नैरो आउटलुक क्या डेवलपमेंट हुआ है लोगों में, नैरो आउटलुक डेवलप हुआ है स्पेशली किन लोगों में, द इंडियंस. Why? Because it did not allow the Indians to mix freely with the foreigners and to go to foreign lands. क्योंकि यह मिक्स नहीं हो पाते हैं दूसरे लोगों से, फॉरेनर से, कि वो एक दूसरे की जगह यानी वो फॉरेन या दूसरे लैंड पर जा सकें. Thus for a very long time the Indians remained in a state of stay at home and could not go to foreign lands either for trade or for education. इस तरह से हम अपने ही स्टेट में बने रह गए और हम बाहर नहीं जा पाए, या हो सकता हम बाहर किस पर्पज से नहीं जा पाए, ट्रेड पर्पज से भी नहीं जा पाए, कॉमर्स पर्पज से भी नहीं जा पाए, और इवन एजुकेशन पर्पज से भी नहीं जा पाए. सेवेंथ, अगेंस्ट द फीलिंग ऑफ वर्ल्ड ब्रदरहुड. इसको हम क्या कर सकते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना के विरुद्ध. द कास्ट सिस्टम विद ऑल इट्स एक्सक्लूसिवनेस एंड रिजिडिटी इज ऑल्सो अगेंस्ट द फीलिंग ऑफ वर्ल्ड ब्रदरहुड. जो कास्ट सिस्टम है विद ऑल इट्स एक्सक्लूसिवनेस, खासियत, मीन्स खासियत, and rigidity means कठोरता से, is also against the feeling of world brotherhood. This institution has now outlived its utility and must be discarded. ये कहा जा रहा है कि इस तरह के इंस्टीट्यूशन को
समाप्त होना चाहिए, एंड ऑल्सो इट्स यूटिलिटी मस्ट बी डिस्कार्डेड, बाहर कर देना चाहिए। इन दिस एज ऑफ साइंस एंड इन्वेंशंस द इंडियंस कैन नॉट लिव इन सिक्यूलेशन, और इस युग में जो कि साइंस का युग है, इस युग में इंडियंस कांट लिव इन, किस में नहीं रह सकते हैं? सिक्यूलेशन। सिक्यूलेशन मीन्स अकेलापन। ओके, नाउ सम आइडियाज ऑफ वीर फूले, वीर सलिंगम, नारायण गुरु, पेरियार, गांधी and Ambedkar. First of all, let us see the ideas of Jyotirao Phule, 1827 to 1890. Jyotirao Phule was the founder of Satya Sodhak Samaj. Jyotirao Phule was one of the most important and also founder of Satya Sodhak Samaj. It was founded in AD 1848 in Maharashtra for the upliftment of the oppressed classes. ये सत्य शोधक समाज की स्थापना 1848 में हुई थी। किसके लिए? कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र। किसके उत्थान के लिए? फॉर द डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑप्रेस्ड क्लास, जो उत्पीड़ित क्लास थी उनके उत्थान के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। He opened many schools for the education of girls of the so-called lower classes, और उन्होंने कई सारे स्कूल्स भी ओपन किए, स्पेशली फॉर एजुकेशन के लिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स, और भी स्पेशली, और किस गर्ल्स के लिए? स्पेशली फॉर द लोअर क्लासेस। He condemned the caste structure, उन्होंने कास्ट स्ट्रक्चर की निंदा की, and opened the gates of his सत्य शोधक समाज for everyone without any distinction of caste and religion। इसलिए उन्होंने इसकी जो कास्ट स्ट्रक्चर की निंदा करते हुए उन्होंने सत्य शोधक समाज की जो गेट थी, दरवाजा था, उन्होंने सबके लिए खोल के रखा था, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक। He was against the supremacy of Brahmins and started the practice of performing the marriage ceremonies without Brahman priest, and he was totally against of Brahmins, and also he started performing some important ceremonies like marriage without the help of Brahmins। वो ब्राह्मण्स के बहुत खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि जो उनके जो समाज में शादियां होती थी, उन्होंने ऐसा तय किया कि यह उनकी जो समाज की शादियां हैं बिना ब्राह्मण के ही होगी। For his good work for the oppressed classes, he was given the name of महात्मा। उनकी इन अच्छे कामों के लिए उनको किस नाम से जाना जाता है? महात्मा। Some traits of ज्योतिराव फूले deserve a special mention। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिस लक्षण के कारण ज्योतिराव फूले एक स्पेशल प्लेस डिजर्व करते हैं। His justification for the criticism of caste inequality in the society। Jyotirao Phule condemned the caste inequalities in the worst possible terms, for which he gave the following justification। उन्होंने जस्टिफाई किया कि क्यों वे इसकी कास्ट सिस्टम की निंदा करते हैं। पहला, he attacked the Brahmins। पहला अटैक उनका किसके ऊपर था? ब्राह्मण्स के ऊपर था। उन्होंने क्या क्लेम किया? क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स बिकॉज दे वर आर्यंस। उन्होंने यह क्लेम किया कि ब्राह्मण्स अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, और वे सुपीरियर हैं क्यों? क्योंकि वे आर्यंस हैं। सेकंड, he argued that the Aryans were foreigners who came from outside the Indian subcontinent
उनका यह भी मानना था कि आर्यंस क्या हैं, आर्यन फॉरेनर्स हैं जो कि दूसरे जगह से आए हैं और कहाँ पर, सब कॉन्टिनेंट, एंड डिफीटेड एंड सब्जुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। इस तरह से उन्होंने डिफीट किया अपने कंट्री के लोगों को और क्या किया, एंड ऑल्सो कंट्रोल द true children of the country. Third, as a result of their dominance, they began looking at the defeated population as inferior, as low caste people. इसलिए और क्या उन्होंने क्या कि उनके प्रभाव के कारण they began to looking, और वे उनको किस रूप में देखने लगे, डिफीटेड पॉपुलेशन के रूप में देखने लगे, और एंड ऑल्सो इंटीरियर एज लो कास्ट पीपल, इसलिए उन्होंने उनको लो कास्ट पीपल का भी नाम दिया। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू फुले द अपर कास्ट पीपल हैड नो राइट टू लैंड एंड पावर। उनके अनुसार जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है, किसके लिए, इस लैंड के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है और ना ही उनका कोई पावर है। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू द लो कास्ट पीपल, एंड इन रियल ऑल द लैंड बिलोंग टू whom, to the low caste people. All the land belonged to low caste people, who were the indigenous people of India, who were the native people of India. Fifth point, Phule claimed that before the arrival of the Aryans in India, there existed a golden age when the peasants tilled their land in the countryside in just and fair ways. उनका यह भी क्लेम था कि आर्यंस यानी आर्यन के इंडिया आने से पहले हम लोग बहुत ही खुशहाल थे, हम अपने खेतों को जोतते थे और आराम से अपने गांव में रहते थे। कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन व्यू, फूले proposed that शूद्राज और लेबर कास्ट शुड यूनाइट टू चैलेंज। सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने यह भी तय किया कि हम सबको एक साथ यूनाइट होने की ज़रूरत है। द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सुपीरियरिटी ऑफ द ब्राह्मणास, इसीलिए उनको चैलेंज देना है। किसको चैलेंज देना है? स्पेशली ब्राह्मण्स एंड द डिस्क्रिमिनेशन, जो कि भेदभाव, द कास्ट भेदभाव के लिए, और स्पेशली जो सुपीरियरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स, उनको चैलेंज देना था। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट ज्योतिराव फुले's book Gulamgiri, and also why was Jyotirao Phule critical of the national movement. Okay beta, so thank you.